Good morning, students. Today I am in plus 2 physics taking the second and third application of Gauss's theorem. First one we have done the electric field due to a long uniformly charged wire. We have calculated that. Now we are taking electric field intensity due to uniformly charged spherical shell. In the starting I told you that Gauss's theorem particularly we are using to calculate electric field due to the 5 complex charge distributions. The first one we have done due to the wire. Now we are going to calculate due to this shell. Just imagine it is a metal ball, right? Metal ball. And we have given charge to this ball. You know, it is if it is a conducting, then the charge will be uniformly distributed, right? That I have shown here. The charge is uniformly distributed on the surface. Let the radius of this is r of this cell. R is the radius, right? And sigma is the surface charge density. Surface charge density. What is the meaning of surface charge density? That if we will say Q is the total charge we have given, that charge divided by total area. You know, area of a cell, it is 4 pi r square, right? Whether it is a hollow or solid, the area is this 4 pi r square, right? So we have to calculate electric field density. 3 cases arises. The point of observation where I have to find out the electric field may be outside, on the surface, or inside. So first case I will take that outside the cell. Charge is inside is and point of observation is outside. Outside means if this is the point P and we have to find out electric field at this point P and this R is greater than the radius. Okay, so just like other expression, we will draw a shell, sphere of a same radius. We have drawn this Gaussian surface and a small area ds we have taken, and on this whole outside the cell we will apply the Gauss's theorem E ds. मैं तुहानू बेटा दस्या सी पहले भी कि ये जो इक्वेशन है ये असी कित्थे लगा रहे हैं, ये चीज तुसी बहुत ध्यान नाल समझनी है। ये इस बाहर वाले गॉसियन सरफेस ते लगा रहे हैं। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगी और यदि कांस्टेंट ही है और इधर ही एरिया लिखना है, राइट? नाउ हियर यू नो जो असी डीएस लिया इधर बाहर की तरफ में एरिया वेक्टर बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, पॉजिटिव चार्ज इधर है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो cos 0 बन गया, वो तो बन गई फिर 0 1, ठीक है। E बाहर आ गया एंड ds एरिया रह गया जो कि 4 पाई r स्क्वायर होगा। बाहर वाला एरिया r रेडियस है ना, स्मॉल r, and this is electric field is whole will go here 1 over 4 pi epsilon naught from here q over r square. You can see if I will give you one question that here is a charge and at distance r find electric field. You will say that is the same. Meaning is ये जो पॉइंट बाहर है सेल दे बाहर ये उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा जिस तरह ये सारा ही चार्ज अगर सेंटर ते होंदा तो उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड आती। मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल will resemble with the electric field if the whole charge will be concentrated at the center. मतलब तुसी जब भी कोई न्यूमेरिकल कुछ चीज आ जाती है तो तुसी ये सब दिमाग च लेके चलो कि सारा चार्ज सेंटर ते है तां असीं इलेक्ट्रिक फील्ड करनी है, ये तुहाडी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, राइट? नाउ द सेकंड केस इज मान लो तुसी सरफेस ते फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ऑन सरफेस। ऑन सरफेस ते स्मॉल और कितना हो गया जो सी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कड्डी है उसी दे विच इन द सेम एक्सप्रेशन मतलब 1 तुसी क्यू स्मॉल और दी जगह कैपिटल आर लिखो, ठीक है। हुण तुसी देखो कि ये जो क्यू है इसकी जगह सिग्मा
4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर तुसीं लिख सकते हो। इसने इसमें कट लिया, 4 पाई ने 4 पाई को कट लिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट सरफेस के ऊपर। जितना ज्यादा चार्ज की डेंसिटी होगी यूनिफॉर्म डेंसिटी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, सिग्मा से डिपेंड करके। ठीक है, ये भी तुसीं दिमाग च रखना बेटा, मैनी टाइम की वीडियोस। नाउ थर्ड इज इनसाइड द सैल, अंदर सैल के अंदर मान लो इतने कोई पॉइंट है, वो आर डिस्टेंस पे है। हुण तुसीं एक गॉसियन सरफेस अंदर बना लो, एक छोटा एरिया ले लो, इलैक्ट्रिक फील्ड बाहर नो, एरिया वेक्टर बाहर नो, तो तुसीं फिर इस मान लो ये S2 सरफेस है, इस S2 ते फिर गॉसियंस की थ्योरम लगा लो। ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय S2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो कि उसी तरह ਤੁਸੀਂ लिख सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर कि कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं है। अगर एक शैल होवे तो उसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये जो इलैक्ट्रिक फील्ड है आ जीरो आ गई। इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? जीरो। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोट करो कि एक शैल के ऊपर पूरे चार्ज है, अंदर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलैक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होएगी अंदर। ठीक है, अंदर फील्ड जीरो होगी। अगर तुसी ग्राफ बनाओ हाँ, इधर इलैक्ट्रिक फील्ड दसो, इत्थे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर दसो शैल दे लिए, तो तुसी दिख रहे हो कि जब मैं इस सेंटर ते बाहर नूं आऊंगा तो इत्थे तक कोई इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर कोई इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं, जीरो है जब तक ये आर है। इस पॉइंट पे इलैक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, और इसके बाद जो इलैक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली टू आर स्क्वायर रिलेशन है, मतलब इस तरह E is inversely proportional to R square। तो एक ग्राफ बना राइट, सरफेस तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इट क्लियर? दिस इज ऑल। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन आई एम टेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। अच्छा, एक मैं तुहानू चीज दसना चाहता कि ये जो शैल सी ये कंडक्टर सी, मेटल सी राइट। अगर इस शैल की जगह तुहानू एक बॉल दी होंदी सफेयर, तो भी एवं ही होना सी, पूरा एक्सप्रैशन एवं होना सी। मैं एक बार फिर समझाने लग्या, शैल तो होलो है, अगर एक बॉल होंगी मान लो तुहानू एक मैटल की बॉल देती, ठीक है, पूरी हार्ड बॉल मैटल की, लोहे की मैटल है ना, तो तुम इसको चार्ज दे दोगे तो भी वो सरफेस पे आ जाना है। ठीक है, बड़ी डिटेल से पढ़ांगे असीं कैपेसिटर चैप्टर च, वो फिर दोबारा सरफेस पे ही आ जाना है। अंदर मतलब फिर भी कोई चार्ज नहीं रहना, बॉल के अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। जिवें मान लो ये एक कंडक्टर है, तुसीं इसको चार्ज दो अंदर पा दो तो भी उन्हें सरफेस पे आ जाना है। ठीक है, तो इलैक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शैल ले लो, चाहे यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सफेयर ले लो, इको ही चीज है। हुण असीं बट लगे कर इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सफेयर, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सफेयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब वही कि एक रबड़ की बॉल है। ठीक है, रबड़ की बॉल ये पूरी सफेयर है ना, पूरी बॉल तो चार्ज अंदर दोगे तो बॉल के अंदर ही रह जाएगा, जिथे रखा चार्ज उत्ते ही रहता है, मतलब अंदर सारे चार्ज हैगा। ठीक है, फिर वही चीज असीं इमेजिन की कि आर इसका रेडियस है, और क्योंकि ये बॉल 3 डायमेंशनल है तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज होगी। वॉल्यूम चार्ज, बड़ी द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम की टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो ये पूरा चार्ज क्या हुआ है तो ये हो गया। फिर 3 केस में, पहला केस में हम इनसाइड पहले लगाएंगे, इनसाइड द सफेयर, इनसाइड द स्फेरिक पॉइंट है आर, पी पॉइंट मान लो, और उसकी आर डिस्टेंस है, तो तुसी एक गॉसियन सरफेस बना लिया। ठीक है, एरिया वेक्टर बाहर हो, इलैक्ट्रिक फील्ड भी बाहर लगाया तुसी। ई डॉट डी एस इंटू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ध्यान रखो, हुण जो बॉल है उसकी इलैक्ट्रिकल परमिटिविटी लिखी जानी है। एप्सिलॉन नॉट तां लिख दे कि पॉइंट
ऑब्जरवेशन और चार्ज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜ ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੈਕਿਊਮ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਵੈਕਿਊਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਪਸਿਲਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ऑफ सफेयर मटीरियल, जिस भी मटीरियल का ये बनया उस मटीरियल की लिखनी है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? ये तो उमें ही हो गया बेटा, ई बाहर आ गया और ds एरिया है ना, ये जो एरिया है ये 4 पाई r स्क्वायर बन गया। चार्ज अंदर कितना है, क्यू एप्सिलॉन। ठीक है, ਹੁਣ क्वेश्चन ये राइज होता है कि पूरे के चार्ज अंदर पूरे सारा जिन्हें फैलिया सी वो क्यों चार्ज से क्यों है ना, तो इतने क्यों नहीं लिख सकते, क्यों लै सकते। तो इस छोटे ने गॉसियन सरफेस कितना चार्ज पर वॉल्यूम कितना है रो, तो इस वॉल्यूम दे विच कितना हो गया 4 पाई r डिस्टेंस। समझ रहे क्या मैं निकाला, ये चार्ज इनक्लोज्ड है, इस अंदर का चार्ज है। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम दे विच रो चार्ज है, इस पूरे वॉल्यूम च कितना आएगा वॉल्यूम इनटू रो। मतलब तुम इस तरह लिख सकते हो बेटा 4 पाई r स्क्वायर रो 4 बाई 3 पाई r क्यूब ओवर एप्सिलॉन। 4 पाई में 4 पाई नु कट लिया, r स्क्वायर में r एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी रो r ओवर 3 एप्सिलॉन। मतलब electric field is directly proportional to r inside ध्यान रखो, inside का मतलब क्या है कि अंदर अगर r 0 होएगा, दूसरा केस में पर डिस्कस करिए एट सेंटर, जब फिलहाल एट सेंटर r is 0, सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ r 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आ कहता इक्वेशन कहती है फर्स्ट कहती है कि 0 होएगी, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होएगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ती जाएगी ये कह रहे हैं ना, एक रिलेशन कह रहे हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और बढ़ती जाएगी इतने जाके मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और बाहर हो जाए तो वो आएगी ऑन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी रो कैपिटल R 3 एप्सिलॉन मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा इतने आएगी। ठीक है, और इस पे बाहर जब जाएगी तो तीसरा केस वही आ गया, बाहर उसी करोगे वही केस आएगा, अंदर का पूरा चार्ज वही क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी आनी जितनी शेल दे विच आई सी, सीधी डायरेक्ट उसी लिख सकते हो एज ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ठीक है, आज मतलब अगर ਅਸੀਂ ग्राफ बनाइए तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, पिछले से थोड़ा सा अलग है, सेल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और डायरेक्ट रिलेशन है, जिमें जिमें बाहर में जा रहे हैं जिमें ये r हो गया सरफेस पे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, फिर वो रिलेशन r स्क्वायर के नाल कटना शुरू हो गई बेटा। ओके, समझ आ गया बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। थैंक यू।